اس وقت پاکستان میں رات کے 8, بھارت میں 8:30, بنگلہ دیش میں 9 اور یہاں لندن کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ پیشے خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بھی۔ 6 اگست کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ امریکہ اور برطانیہ کا آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے عزم کا اعادہ۔ امریکی نائب صدر کا کہنا ہے کہ ایران میں ایک حلقہ مذاکرات کا جبکہ دوسرا جنگ جاری رکھنے کا حامی ہے۔ The reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان خان کا کہنا ہے کہ عمران خان آزادی کے لیے کسی ڈیل پر آمادہ نہیں ہوں گے اور انہیں اپنے کیے گئے اقدامات پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو انصاف اور عمران خان سے اہل خانہ وکلا اور ڈاکٹروں کی ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو پی ٹی آئی 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کرے گی، جبکہ لاہور اور کراچی میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران پولیس کا لاٹھی چارج، متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جاری کشیدگی کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر مظاہرین مسلح جتھے کی صورت میں مظفر آباد کی جانب پیش قدمی کریں گے تو انہیں ہر ممکن طریقے سے روکا جائے گا۔ اگر وہ وہاں سے فورسفلی مسلح جتھے کی صورت میں مظفر آباد پہ چڑھائی کی کوشش کریں گے ان کو بائی آل مینز روکا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی عوامی لیگ کی جلاوطن سربراہ اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد نے دسمبر میں اپنے ملک واپس جانے کا اعلان کر دیا۔ Well, you see, I just declared that I am coming. I am going to Bangladesh, okay? شیخ حسینہ کہہ رہی تھی کہ میں اعلان کرتی ہوں کہ میں بنگلہ دیش جا رہی ہوں۔ واپسی کی تاریخ اور دوسری تفصیلات میں وقت آنے پر بتا دوں گی۔ اسپیس ایکس کا 4000 کلو گرام وزنی راکٹ 8700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چاند کے ایک خالی حصے سے جا ٹکرایا، مگر یہ سائنسدانوں کے لیے تحفہ کیسے بن گیا؟ یہ ان سائنسدانوں کے لیے بہت اہم ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ چاند کیسے وجود میں آیا، یہ کن عناصر سے بنا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا ممکنہ مستقبل کیا ہو سکتا ہے اور سیاروں کے نظام کس طرح تشکیل پائے اور اربوں سال پر محیط، زمین اور چاند کا تعلق کیسے پیدا ہوا۔ تیسرے بچے کے لیے 30 اور چوتھے بچے کے لیے 40,000۔ جانیے آندھرا پردیش میں آبادی بڑھانے کے لیے بھارتی حکومت مالی تعاون کیوں دے رہی ہے۔ یہاں حکومت کو خطرہ ہے کہ ریاست کی آبادی خطرناک حد تک گر سکتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ آبادی کا کم ہونا تو اچھی خبر ہونی چاہیے، اس میں خطرے کی کیا بات ہے؟ اس معمے کو ذرا دیر میں سمجھائیں گے۔ جانیے دہلی میں پیٹرول سے چلنے والی 2 پہیہ گاڑیوں اور آٹو رکشوں کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے۔ ریسرچ کے مطابق شہر کی فضا میں آدھے سے زیادہ زہر 3 پہیوں والی گاڑیوں سے پیدا ہونے والی پولوشن کے نتیجے میں پھیلتا ہے، اس لیے حکومت اگلے سال سے زیادہ الیکٹرانک گاڑیاں متعارف کروانا چاہتی ہے۔ یہ بھی جانیے کہ یونیورسل بیسک انکم یعنی UBI کیا ہے اور کیا ہر شہری کو ماہانہ رقم دینے سے روزگار کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں جہاں 80، 90 یا 95% افرادی قوت یونیورسل بیسک انکم پر زندہ ہو تو ہم در حقیقت وہ سب سے گہری تقسیم پیدا کر چکے ہوں گے جس کا انسانیت تصور کر سکتی ہے۔ موت کے وقت انسان کا دماغ کیا کرتا ہے، سنیے سائنسدانوں کی نئی حیران کن دریافت۔ چند سال پہلے تک اس پر زیادہ سائنسی تحقیق موجود نہیں تھی، مگر اب حالات بدل رہے ہیں اور حالیہ دریافتیں پرانے تصورات کو رد کر رہی ہیں اور موت کو قریب سے دیکھنے کے تجربات کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ جانیے وکٹورین دور کے سیکس کلٹ کے بارے میں، ایک ایسی کمیونٹی جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ اس گروہ میں شامل ہونے والوں سے کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور اسی صورتحال نے اس گروہ سے منسلک بہت سے افراد کو بالآخر اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے پر مجبور کیا۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور جنگ کے حوالے سے امریکی عوام میں پائی جانے والی بے چینی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی حکومت کے اندر بھی اس معاملے پر اختلافات موجود ہیں۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ ایرانی قیادت میں ایک حلقہ مذاکرات کا خواہش مند ہے جبکہ دوسرا سخت گیر گروہ جنگ جاری رکھنے کا حامی ہے۔ ان کے مطابق ایران کے ساتھ کشیدگی اور محاذ آرائی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تاہم انہیں یقین ہے کہ بالآخر اس کا نتیجہ امریکی عوام کے حق میں نکلے گا۔ The reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well. And I do think that where we will ultimately land, it's going to be messy and it's going to take some time to get there. جے ڈی وینس نے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکی مذاکراتی وفد کی قیادت کی تھی۔ اسی دوران بعض رپورٹس کے مطابق ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر کالیباف آئندہ چند روز میں پاکستان کا ممکنہ دورہ کر سکتے ہیں، تاہم تہران نے ان اطلاعات کی سرکاری طور پر تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ محمد باقر کالیباف نے پاکستان کی ثالثی میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت کی تھی، جن کے نتیجے میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر سائن کیے گئے تھے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ کشیدگی اور فوجی تصادم شروع ہونے کے بعد یہ مفاہمتی یادداشت عملاً غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ نے واشنگٹن میں ملاقات کے دوران ایران سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی پیگوٹ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانے اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے یا تیار کرنے سے روکنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملاقات میں یورپ کی سلامتی میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ایڈ ملیبینڈ کے مطابق واشنگٹن میں اپنی ملاقاتوں کے دوران وہ روس کے خلاف یوکرین کی مسلسل حمایت، غزہ کی سنگین انسانی صورتحال اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان دیرپا امن کے لیے جاری کوششوں پر بھی بات کریں گے۔ بی بی سی فارسی کے مطابق واشنگٹن میں صحافیوں نے برطانیہ کے وزیر خارجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ان کی ماضی کی تنقید کے بارے میں بھی سوال کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا وہ اب بھی صدر ٹرمپ کو نسل پرست اور خواتین مخالف سمجھتے ہیں، تو ایڈ ملیبینڈ نے اس سوال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ادھر امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی پاسداران انقلاب سے مبینہ روابط کے باعث پابندیوں کا سامنا کرنے والی عراقی ایئر لائن فلائی بغداد اور اس سے وابستہ بعض کمپنیوں پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فلائی بغداد ایئر لائنز اور عراق ایکسپریس کو پابندیوں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ ان کمپنیوں پر ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس سے مبینہ روابط کے باعث پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ کمپنی کے 2 طیاروں پر عائد پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ اسی دوران ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز میں ایک نئے عارضی بحری راستے کے حوالے سے اصولی اتفاق رائے ہو چکا ہے اور معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ جمعرات کے روز ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت اور ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق ممکنہ معاہدوں کی خبروں کے باعث تیل کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ برینٹ خام تیل کی قیمت 37 سینٹ کم ہو کر $79.08 فی بیرل ہو گئی ہے۔ اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ یعنی WTI خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 53 سینٹ کم ہو کر $69.74 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان کے 2 شہروں لاہور اور کراچی میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جہاں پولیس اور مظاہرین کے درمیان کشیدگی کے بعد متعدد کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کراچی میں پریس کلب کے اطراف PTI کارکنان نے احتجاج کیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان کشیدگی کے بعد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور متعدد کارکنان کو حراست میں بھی لے لیا۔ کارروائی کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے، جبکہ گرفتار افراد کو مختلف مقامات پر
पर मुंतकिल किया गया है। इसी तरह पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर में ऐवान अदल के बाहर होने वाले एहतजाज के दौरान भी पुलिस ने पीटीआई कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की। मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में लिया गया, जबकि रुकने पंजाब असेंबली ओवैस विर्क को भी गिरफ्तार किए जाने की इतलात हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ऐवान अदल के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तनाव पैदा हुआ, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एहतजाजी शुरुका को मुंतशिर करने के लिए कार्रवाई की। पीटीआई रहनुमाओं ने लाहौर और कराची में पुलिस की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए इसे पुरअमन एहतजाज के हक पर कदगन और सियासी इंतकाम करार दिया है। पुलिस की जानिब से इन इल्ज़ामात पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान ने CNN से गुफ्तगू में कहा है कि वो गुज़िश्ता 7 माह से अपने वालिद से मुलाकात नहीं कर सके और उनकी सेहत के बारे में वो फ़िक्रमंद हैं। कासिम और सुलेमान खान के मुताबिक उनकी आखिरी मरतबा अपने वालिद से मार्च में फ़ोन पर बात हुई थी, जिसके बाद ख़ानदान को उनसे मुलाकात या गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दी गई। उनका कहना था कि अदालत के अहकामात के मुताबिक उन्हें हर 2 हफ्ते बाद इमरान खान से बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। ताहम इस मरतबा उनसे राब्ता ना होने का दौरानिया सबसे तवील हो गया है। इमरान खान के बेटों ने यह भी कहा कि उन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा, जबकि उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मियाद ख़त्म होने के बाइस काबिल इस्तेमाल नहीं रहे। उनके बकौल वीज़ा जारी ना किए जाने की कोई वजह उन्हें नहीं बताई गई। उन्होंने अपने वालिद के इलाज और तिब्बी सहूलियात के बारे में भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उनके ख्याल में इमरान खान का इलाज कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं हो रहा, जिसे उन्होंने तशद्दुद की एक शक्ल करार दिया है। We made a bunch of attempts to try and get our visa to be able to go out there. There was no response. There were technical difficulties and things like that apparently that have blocked us. So they clearly just don't want us to come round. Potentially out of fear of us joining any of these protests or anything like that. They actually made a statement that was very promptly deleted on Twitter, on X, saying that if we were to come, we'd be arrested for joining a movement. So इमरान खान के खिलाफ मुकदमात और उनकी सज़ाओं के बारे में बात करते हुए उनके बेटों का कहना था कि उनके वालिद हमेशा पाकिस्तान में बदउनवानी के खिलाफ बात करते रहे हैं और उन्हें बचपन से ही बदउनवानी के खिलाफ तालीम देते रहे। उनके मुताबिक ये बात उनके लिए तकलीफ देह है कि आज उनके वालिद खुद बदउनवानी के इल्ज़ामात में कैद हैं। आज़ादी के बदले हुकाम के साथ मुमकिना मुआहदे से मुतल्लिक़ सवाल पर कासिम और सलमान खान ने कहा कि उनके वालिद किसी डील के लिए तैयार नहीं होंगे। उनके बकौल इमरान खान जिस्मानी तौर पर कमज़ोर ज़रूर हुए, लेकिन ज़हनी तौर पर अब भी मजबूत हैं। उनका कहना था कि उनके वालिद को अपने किए गए इक़दामात पर कोई पछतावा नहीं और उनसे होने वाली गुफ्तगू में भी उन्हें कभी ऐसा तासुर नहीं मिला। उधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने PTI के जलसे से खिताब करते हुए 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि PTI का पहला मुतालबा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया से मुतालिक मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करके उन्हें इंसाफ फराहम करना है, जबकि दूसरा मुतालबा इमरान खान से उनके वकला, डॉक्टरों, अहल खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों की बहाली है। सोहेल आफरीदी के मुताबिक अगर इन मुतालबात पर पेशरफ्त ना हुई तो 27 सितंबर को मुल्क भर से PTI कारकुन इस्लामाबाद का रुख करेंगे। उनका कहना था कि जमात अपने आईनी और जमहूरी हक के तहत पुरअमन एहतजाज करेगी। लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है? टीचर की आइडियोलॉजी 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के तमाम केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं। दूसरा मुतालबा कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां लगी है, चाहे वो मुलाकातों पर है, चाहे उनके जाती डॉक्टर्स पर है, चाहे वो उनकी वकला पर है, उनकी फैमिली, इनकी मुलाकातें खोली जाए जल्द अज जल्द। 27 सितंबर भूलना नहीं। 20
सितंबर तक पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि 27 सितंबर को कुछ होने वाला है। अपनी तकरीर में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने इमरान खान की रिहाई, अदालती निज़ाम, मुल्क की मईशत, अमन व अमान और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर भी तनकीद की और कहा कि PTI अपने मुतालबात के हुसूल के लिए सियासी और कानूनी जद्दोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर मुजाहिरीन मुसल्लह जत्थे की सूरत में मुजफ्फराबाद की जानिब पेशकदमी करेंगे तो उन्हें हर मुमकिन तरीके से रोका जाएगा। उनका कहना है कि हालिया तनाज़े में मुजाहिरीन के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार भी जानी नुकसान से दोचार हुए हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक कश्मीर के इस मसले का मुस्तकिल हल सिर्फ इंतखाबात के ज़रिए ही मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, सुनिए खुद उनकी ज़बानी। अगर वो वहाँ से फोर्सफुली मुसल्लह जथे की सूरत में मुजफ्फराबाद पे चढ़ाई की कोशिश करेंगे तो उनको बाई आल मीन्स रोका जाएगा। बैठे हैं, बैठे रहें, उनको खाना मिल रहा है, उनको वहाँ पे हर चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ उनको वो रोकी नहीं गई। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है, पुलिस वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने आपके साथ क्या डेथ टॉल शेयर किया कि कितने मुजाहिरीन की हलाकतें हुई? मैं इसमें कोई फिगर जो है ना उसको टच नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वहाँ पे 2-3 दफ़ा जब उन्होंने बढ़ने की कोशिश की है और लाइन फोर्सेस ने उनको रोका है तो उसमें नुकसान तो हुआ है, दोनों तरफ हुआ है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा है कि जी 400 हुई है वो तो गलत है। अगर आप 9 जून से लें तो मेरा ख्याल है कि दैट मे बी इन डबल फिगर। मुसल्ला लॉन्ग मार्च जो है ये तो फिर लॉन्ग मार्च नहीं होता या पॉलिटिकल मार्च नहीं होता, ये तो एक लश्कर कशी होती है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर जब वो फायर करेंगे तो फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? क्योंकि ब्लैकआउट है मीडिया पे, लोकल चैनल्स कुछ नहीं वहाँ के हालात बता रहे, वहाँ जर्नलिस्ट नहीं जा पा रहे, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है बार बार कि एक्सेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरनेट डाउन है। बात ये है ना कि जो दहशत गर्दी है यहाँ पे दहशत गर्दों से लॉ इन्फोर्सिंग जो है वो एंगेज हुई हुई हैं। उस इलाके में सोशल मीडिया या मीडिया उसको एक्सेस जो है वो किस तरह से जो है वो दी जा सकती है। आप इनको दहशत गर्द कह रहे हैं जो लोग इस वक्त लड़ रहे हैं वहाँ पर। इज़ देयर एनी डाउट? लेकिन मैं ये चाहता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि उनके साथ यहाँ के लोग भी हैं, हमारे कश्मीरी लोग भी हैं। हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनसे अलहदा हो जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी है ना, वो बुनियादी तौर पे दहशतगर्द नहीं थी और ये सिलसिला कहीं से भी नहीं चल रहा सिवाय 9 जून से। ये जब भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जो उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है। उन्होंने 23 में जो प्रोटेस्ट किया तस्लीम किया, प्रोटेस्ट पीसफुली ख़त्म हो गया। उन्होंने उसके बाद अक्टूबर 2025 में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनके साथ हम आगे बैठे, उनके तमाम मुतालबात तस्लीम किए और वो खुशी अपने मुतालबात उठ के चले गए। आपने कहा उनके पीछे काफ़ी सारे अनासर हैं, आपकी क्या इतलात हैं, कौन से अनासर हैं? इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग इनके पास खुदा बेहतर जानता है कि कहाँ से आ रही है इतनी, लेकिन हमारा तो ख्याल यही है कि शायद वो बराह रास्त सामने ना हो, वो कोई 2 सोर्सेज पीछे हों, लेकिन इतनी फंडिंग जो है वो वहाँ से आ सकती है और किसी जगह से नहीं आ सकती। लेकिन अभी स्टेट की ये पॉलिसी नहीं है कि इन चीज़ों को जो है वो इस तरह से ऑन एयर किया जाए। शायद मेरा ख्याल है कि इस मामले को किसी रिकग्नाइज्ड फोरम पे जो है वो उसको लाया जाना जो है वो बेहतर समझा जा रहा है। बहुत बात होती है 12 जो महाजरीन की सीटें हैं उसके साथ। जी 12 महाजरीन की जमातों की जो सीटें हैं, अगर बाकी सारे पूरे हो गए तो उसको तस्लीम कर लें, उसके बाद आ जाए महाजरीन की सीटों के ऊपर। ये मुतालबा जो है ये असम्बली के अलावा कोई और पूरा कर सकता है? हमने तो उनको कहा कि जी आप इसी मुतालबे पे इलेक्शन लड़ें, लोगों से मैंडेट लेके आप आइन अमेंड करें और इन सीटों को कम करना है कम कर लें, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर लें, ख़त्म करना है ख़त्म कर दें। महाजरीन हैं, अगर उनको हम माइनस कर देते हैं तो फिर वो तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर नहीं रहती, वो तो फिर सिर्फ आज़ादी का ये हिस्सा रह जाता है। इस मामले का एंड क्या देखते हैं आप, कहाँ जाता नज़र आ रहा है ये तरफ? इसका एंड क्या है? इसका एंड ये इलेक्शन ही है।
اگر یہ الیکشن جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت ود دی سپورٹ اینڈ فیسیلیٹیشن آف گورنمنٹ آف پاکستان کروا جاتی ہے، ایک منتخب قیادت اپنے مینڈیٹ کے ساتھ آزاد کشمیر گورنمنٹ بنا لیتی ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر حل ہے۔ عوامی لیگ کی جلا وطن سربراہ اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد نے دسمبر میں اپنے ملک واپس جانے کا اعلان کیا ہے۔ بدھ کو فارن کورسپونڈنٹ کلب آف ساؤتھ ایشیا کے زیر اہتمام ایک ورچوئل پریس کانفرنس میں انڈیا میں مقیم بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اپنے ملک واپسی کی تاریخ تو نہیں بتائی، لیکن کہا کہ وہ دسمبر میں وہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس ایونٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے شیخ حسینہ کے لندن میں مقیم صاحبزادے اور سیاسی مشیر سجیب واجد جوئے بھی موجود تھے۔ اس پریس کانفرنس کے دوران بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کی تصویر تو سکرین پر نظر نہیں آئی، تاہم وہ اپنی آواز کے ذریعے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتی رہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بنگلہ دیش روانگی کی تفصیلات کے حوالے سے جلد ہی میڈیا کو آگاہ کریں گی۔ مزید تفصیل دلی سے شکیل اختر کی زبانی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے دلی میں ایک ورچوئل نیوز کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ وہ دسمبر میں بنگلہ دیش واپس جائیں گی، تاہم انہوں نے واپس لوٹنے کی کوئی واضح تاریخ نہیں بتائی ہے۔ Well, you see, I just declared that I'm coming. I'm going to Bangladesh, okay? شیخ حسینہ کہہ رہی تھی کہ میں اعلان کرتی ہوں کہ میں بنگلہ دیش جا رہی ہوں، واپسی کی تاریخ اور دوسری تفصیلات میں وقت آنے پر بتا دوں گی۔ دسمبر ہماری آزادی کا مہینہ ہے، میں دسمبر میں جاؤں گی۔ 2 برس قبل بنگلہ دیش میں اپنی حکومت کے خلاف طلباء کے ملکگیر احتجاج کے بعد شیخ حسینہ ڈھاکہ سے فرار ہو کر انڈیا آ گئی تھیں۔ یہ اس نوعیت کی پہلی پریس کانفرنس تھی، لیکن وہ صرف آڈیو میں سامنے آئیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے موت کی سزا سنائی گئی ہے اور ڈھاکہ واپس لوٹنے پر انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو ان کا کہنا تھا What government will do, it is their matter. شیخ حسینہ کہہ رہی تھی کہ وہاں کی حکومت کیا کرے گی یہ وہ جانے، میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میں جاؤں گی۔ جب شیخ حسینہ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ڈھاکہ سے فرار ہونے سے پہلے طلباء اور سیاسی کارکنوں کی ہلاکت کے لیے معافی مانگیں گی، تو اس کا جواب ان کے بیٹے اور سیاسی مشیر سجیب واجد جوائے نے دیا۔ The Yunus regime and the BNP regime has continued what I mentioned in my speech, immunity, indemnity. سجیب کہہ رہے تھے کہ محمد یونس اور موجودہ حکومت نے پولیس افسروں، شہریوں اور عوامی لیگ کے کارکنوں کے قتل کو جائز قرار دیا ہے۔ میری والدہ نے کہا تھا کہ یہ ایک پرتشدد سچویشن تھی، ان حالات میں ایک طرح کے تشدد کو جائز ٹھہرانا اور تشدد کے دوسرے واقعات کے لیے معافی مانگنے کی بات کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس نیوز کانفرنس سے پہلے انڈیا کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ اس نیوز کانفرنس کے انعقاد یا اس میں کہی جانے والی باتوں سے انڈیا کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسپیس ایکس کا ایک بھٹکا ہوا 4000 کلو وزنی راکٹ چاند پر جا گرا ہے۔ اس تصادم سے چاند کی سطح پر ایک بڑا گڑھا بن گیا ہے اور سائنسدانوں کو ایک منفرد تحقیقی موقع ملا ہے جو مستقبل کے خلائی مشنوں میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بدھ کے روز فالکن 9 راکٹ کا خالی بلائی حصہ تقریباً 8700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آئنسٹائن کریٹر کے قریب چاند سے ٹکرا گیا۔ امریکہ میں راکٹ کے اس تصادم سے حاصل ہونے والی معلومات کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات جاننے اور یہ سمجھنے میں کہ اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے کئی دن حتیٰ کہ کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ تاہم ارضیات کے ماہرین کے لیے یہ غیر متوقع تصادم ایک سائنسی تحفہ ہے۔ 3، 2، 1 Ignition۔ یہ راکٹ گزشتہ سال جنوری میں ایک لینڈر اور ایک روور کو چاند کی سطح پر لے جانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ چاند سے ٹکرانا تو دور کی بات ہے، اسے تو چاند پر اترنا بھی نہیں تھا۔ فلوریڈا کے تاریک آسمان میں ایک کامیاب لانچ۔ راکٹ کا نچلا حصہ الگ ہوا اور بالائی حصے نے چاند کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ اس وقت کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام چاند سے ٹکرانا ہوگا، مگر وہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا ہو کر رہا۔ یہ مناظر ناسا کی 2009 میں چاند پر ایک دانستہ کریش لینڈنگ کی اینیمیشن سے لیے گئے ہیں۔ ایک مختصر چکا چوند اور 100 کلومیٹر تک اٹھتا ہوا ملبے کا بگولا۔ اسے زمین سے دیکھنا مشکل تھا، لیکن طاقتور دوربینوں نے اس واقعے کو ریکارڈ کر لیا۔
साइंसदानों को इससे बेशबहा मालूमात मिली। ये तसादुम साइंसदानों के लिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमें इस वाक़े का पता है और हमें रॉकेट के टकराने वाले हिस्से की रफ्तार और कमियत का भी मालूम है। शाहब ये तो रोज ही चांद से टकराते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें ये सब मालूम नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इस टक्कर के नतीजे में चांद की सतह से उठने वाले मलबे के मुताले से साइंसदानों को कहीं ज्यादा और बेहतर मालूमात हासिल होंगी। मसलन टकराव के नतीजे में पैदा होने वाली रोशनी के तज्जिये से साइंसदान तसादुम वाले मकाम की बनावट का अंदाजा लगा सकेंगे। ये उन साइंसदानों के लिए बहुत अहम है जो जानना चाहते हैं कि चांद कैसे वजूद में आया, ये किन अनासिर से बना है, इसकी तारीख क्या है, इसका मुमकिना मुस्तकबिल क्या हो सकता है और सैयारों के निज़ाम किस तरह तश्कील पाए और अरबों साल पर मुहीत, जमीन और चांद का ताल्लुक कैसे पैदा हुआ। इस तसादुम से हासिल होने वाला इल्म नासा को आने वाले बरसों में चांद पर अपना अड्डा कायम करने में मदद देगा। भारत की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां हुकूमत आबादी में इजाफे के लिए माली मराहत देने पर गौर कर रही है। आमतौर पर आबादी में कमी को मईशत और माहौल के लिए एक मुस्बत रुझान समझा जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कम होती शरह पैदाइश हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस बन रही है। आखिर रियासती हुकूमत आबादी बढ़ाने के लिए माली ताउन क्यों दे रही है और इसके पीछे क्या अवामिल हैं? जानिए कैसर अंद्राबी से। तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए 30,000 और चौथे के लिए 40,000। कैसा आइडिया है? आप करेंगे? शायद आपका जवाब ये होगा कि पैसे दे दो, जो है उनकी परवरिश अच्छे से कर लेंगे, मजीद आबादी बढ़ाने से क्या फ़ायदा। लेकिन इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत अपनी कम आबादी के इम्कान से इतनी फ़िक्रमंद है कि उन्होंने लोगों को मजीद आबादी बढ़ाने के लिए माली अयानत यानी कैश इंसेंटिव्स देने का फैसला किया है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर हो क्या रहा है? बस यही मालूम करने के लिए हम यहाँ आंध्र प्रदेश मिशन पर आए हैं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और माहिरीन के मुताबिक सन 2060 तक इसकी आबादी 1.7 अरब तक पहुँच जाएगी। मुल्क में मजमूई तौर पर आबादी बढ़ रही है, लेकिन कहीं ये शरह काफ़ी ज़्यादा है और कहीं बहुत कम। मिसाल के तौर पर आंध्र प्रदेश, यहाँ हुकूमत को खतरा है कि रियासत की आबादी खतरनाक हद तक गिर सकती है। आप सोचेंगे कि आबादी का कम होना तो अच्छी खबर होनी चाहिए, इसमें खतरे की क्या बात है? इस मुअम्मे को जरा देर में समझाएंगे। लेकिन पहले आपको ऐसे गांव ले चलते हैं जहां ये खतरा हकीकत की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट का सालंत्री गांव है, जहां पर 2010 में 1070 लोगों की आबादी थी। 15 साल गुजरने के बाद आबादी में महज 190 लोगों का इजाफा हुआ है। गांव में 2 स्कूल है, एक हाई स्कूल और एक प्राइमरी। यहाँ असातिज़ा कहते हैं हर साल स्कूल के सहन का शोर कम और क्लासरूम्स खाली होते जा रहे हैं। कुछ इसलिए कि वालिदैन प्राइवेट स्कूल्स को तरजीह दे रहे हैं और दूसरा क्योंकि अब लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर कम टू प्राइवेट स्कूल इन दिस इंस्टीट्यूट। ज़्यादातर वालिदैन अब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में दाखिल कराते हैं और आजकल ज़्यादातर ख़ानदान सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही पैदा कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ हर साल दाखिलों की तादाद भी मुसलसल कम हो रही है। एक वक्त था जब स्कूल में तकरीबन 2002 तक लगभग 600 बच्चे तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब उनकी तादाद घटकर सिर्फ तकरीबन 190 रह गई है। मुस्तकबिल में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। मुझे तो ये भी डाउट है कि ये स्कूल रहेगा भी या नहीं। Whether the schools will be in existence or not. बस रियासती हुकूमत को भी यही फिक्र है, बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा। हमारी रियासत में 58% आबादी ऐसे खानदानों पर मुश्तमिल है जिनमें सिर्फ एक बच्चा है। फिलहाल हमारा TFR 1.5 है, जिसे बढ़ाकर हमें 2.1 करना है। दुनिया के बहुत से ममालिक को भी इसी बहरान का सामना है, इसलिए हम एक नई पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। माली इमदाद के अलावा हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में हर बच्चे के लिए 5 साल की उम्र तक 1000 रुपये माहाना वजीफ़ा, 18 साल तक मुफ्त तालीम और वालिदैन के लिए 12 माह की पैटर्निटी या मैटरनिटी लीव भी शामिल है।
वजीर आला के मुताबिक इस पॉलिसी में माँ और बच्चे की सेहत और माओं को बाइख्तियार और हुनरमंद बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत का कहना है कि मुस्तकबिल में माइशियत को मजबूत रखने के लिए आबादी में इजाफा ज़रूरी है। आज के बच्चे ही कल की अफरादी कुव्वत और माइशी तरक्की का सबसे बड़ा सहारा होंगे। जुनूबी रियासतों को ये भी फिक्र है कि अगर मुस्तकबिल में पार्लिमानी नशस्तों का तायीन आबादी की बुनियाद पर हो तो उनके हिस्से में आने वाली सीटें और नतीजतन कौमी सियासत में उनका असर रसूख कम हो सकता है। लेकिन आबादी घटने के नुकसान और भी है। मौजूदा सूरत हाल अगर बरकरार रही तो माहिरीन के मुताबिक काम करने वाले लोगों की आबादी कम होना शुरू होगी, सनत, ज़राअत और सर्विस सेक्टर में अफरादी कुव्वत की कमी पैदा होगी, घरेलू मांग कम होने से कारोबार की तोसी मुतासिर होगी और बुजुर्गों की आबादी बढ़ने से सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के अखराजात में इजाफा होगा और जाहिर है इस सब का असर माशी तरक्की पर होगा। किसी भी इलाके की आबादी को मुस्तहकम रखने के लिए ज़रूरी है कि हर औरत औसतन 2.1 बच्चे को जन्म दे। इसे टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR कहते हैं। इंडिया का मजमूई TFR 1.9 तक गिर चुका है और आंध्र प्रदेश में सिर्फ 1.5 रह गया है। कुछ यही हाल आसपास की जुनूबी रियासतों का भी है। लेकिन हालात इस नहज तक पहुंचे ही क्यों? हमने नौजवान जोड़ों से पूछा उनके नजदीक एक मिसाली खानदान कितना बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे करने की बात किसी ने नहीं कही। 1 or 2. 2 is better. Only 2 babies. लेकिन क्यों? इन्हें किस बात की फिक्र है? In today's life, the kids schooling and all, it reaches up to 1 lakh and all. Not even the 10th. It starts from the LKG nursery. First thing is financial, because as we see competition is too much nowadays. तो सवाल ये है कि क्या माली एयानत की इन स्कीमों से लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने पर माइल किया जा सकता है? अगर 50 भी दे है नहीं कर सकता। आजकल फीस है 2 लाख रुपये है, सब कुछ मिलाकर 2 का ज्यादा होता है। हम कैसे उसको पाल सकते हैं, उनको इससे आगे बढ़ा सकते हैं? इसके ध्यान में रखते हुए 2 बच्चा बहुत है, जो ही ज्यादा ही है। It's okay if they provide not to us, but some other people it may helps. ये सौरभ नायडू है, प्राइवेट स्कूल में टीचर। इनका 12 साल का एक बेटा है। इन्होंने अपने बचपन मुश्किल हालात में गुजारा है और उसकी वजह से दूसरा बच्चा पैदा न करने का फैसला किया। My father don't. मेरे वालिद दूसरों से उधार मांगते थे। किसी से कहते कि मुझे 100 रुपए दे दीजिए और किसी और से भी इसी तरह मदद मांगते। लोग उन्हें पैसे दे दिया करते थे। ये उनकी अपनी मजबूरी थी। मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि मुझे उनसे बेहतर ज़िंदगी मिले, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत की। जिस पस मंज़र से वो आए थे उस हिसाब से उन्होंने मेरे लिए बेहतर करने की कोशिश की। तो वो कौन लोग हैं जो इन स्कीमों की तरफ सबसे ज्यादा रागिब होंगे? ये स्कीमें सबसे ज़्यादा माशरे के कमज़ोर तबकात को मुतासिर करेंगे। ऐसे लोग जो रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ़ौरी माली मदद ढूंढते हैं, उनके लिए ये स्कीमें बहुत पुरकशिश होंगी। मुमकिन है वो इन फ़वाइद की वजह से ज़्यादा बच्चे पैदा करने का फ़ैसला करें। अगर ऐसा होता है तो आखिरकार हुकूमत पर माली बोझ मज़ीद बढ़ सकता है। Burden on the government. रिगीना त्रिवेणी 3 बेटियों की मां है, जिन्हें वो अकेले पालने की कोशिश कर रही हैं। बच्चों की परवरिश पर बढ़ते हुए अखराजात का बोझ उनकी आंखों में साफ नजर आता है। मैं बच्चों की स्कूल फीस भी अदा नहीं कर पा रही। घर के हालात बहुत ख़राब है। मैं छोटे मोटे काम करके अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रही हूँ और माली तौर पर बहुत मुश्किलात का सामना कर रही हूँ। मेरे सर पर बहुत कर्जा है और मेरे शोहर न मेरी फिक्र करते हैं और ना ही बच्चों की। रिगीना कहती है कि अगर वो ये फैसला दोबारा कर सकती तो 1 से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करती। मैंने सोचा था कि काश 3 बच्चों के बजाय मेरे पास सिर्फ 1 ही बेटी होती। अगर वो इन हालात में हमें छोड़कर चले भी जाते तब भी मैं अकेले अपनी उस एक बेटी की परवरिश कर लेती। आलमी सतह पर जापान, साउथ कोरिया और यूरोप के कई ममालिक इसी सख्त मुश्किल से दोचार है। हालांकि उन्होंने भी कुछ इस तरह की स्कीमें आजमाई थी, मगर उससे कोई ख्वातिर खा नताइज सामने नहीं आए। इंडिया में आंध्र प्रदेश पहली रियासत है जहां आबादी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तदाबीर तो बहुत की गई हैं, लेकिन क्या ये नौजवानों की सोच बदल पाएगी? ये वक्त ही बताएगा।
भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने पेट्रोल से चलने वाली 2 पहिया गाड़ियों और ऑटो रिक्शों को मरहलावार ख़त्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। हुकूमत पहले ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को मुख्तलिफ टैक्स मराद दे रही है, जबकि नई पॉलिसी के तहत अगले साल से बरकी गाड़ियों के इस्तेमाल को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जाएंगे। दिल्ली हुकूमत का कहना है कि इस पॉलिसी का मकसद ट्रांसपोर्ट के शोबे से पैदा होने वाली आलूदगी में कमी लाना है। देखिए अरुणोदय मुखर्जी की रिपोर्ट। दिल्ली दुनिया के 5 सबसे आलूदा शहरों में से एक है। यहाँ एयर पोल्यूशन की सतह मुकर्ररा हद से 10 गुना ज़्यादा रहती है। रिसर्च के मुताबिक शहर की फ़िज़ा में आधे से ज़्यादा जहर 3 पहियों वाली गाड़ियों से पैदा होने वाली पोल्यूशन के नतीजे में फैलता है। इसलिए हुकूमत अगले साल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ मुतारिफ़ करवाना चाहती है। ताहम माहौल दोस्त करार दिए जाने वाले इस फैसले से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। 4 घंटे हमने सुबह चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज करके गाड़ी आगे निकाली, वो मैक्सिमम आपका 100 किलोमीटर तक। घर से हम चार्ज करके चलते हैं या चार्जिंग पॉइंट पे कहीं चार्जिंग करते हैं तो 4 घंटे चार्ज दिल्ली के अंदर। कितनी लंबी लाइन लगेगी। दिल्ली में हर 25 गाड़ियों के लिए एक पब्लिक चार्जर है और हुकूमत इस तादाद में इजाफा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स में बेयकीनी है और बाइकर्स इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पर स्विच नहीं करना चाहते। हज़ारों डिलीवरी वर्कर्स जिनका रोज़गार 2 पहियों वाली गाड़ियों पर मुनहसर है, इन्हें पेट्रोल गाड़ियों का तजर्बा है और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां इनके लिए नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक का तो हमारा तो सवाल पैदा होता नहीं है, क्योंकि भाई चार्जिंग का हिसाब बहुत अलग है, एचपी नहीं है उसमें। ठीक है, ये हमारी तरफ से तो हमें तो बिल्कुल मंजूर है नहीं जी भाई। लेकिन हुकूमत आलूदगी कम करना और ख़ुद मुख्तारी को फ़रोग़ देना चाहती है। इससे इंडिया को मशरिक़ वस्ता से तेल और दीगर ईंधन की दरामद पर सालाना अरबों खर्च नहीं करना पड़ेंगे। अमेरिका और ईरान की जंग ने वाज़ेह कर दिया है कि जियोपॉलिटिक्स इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। गरीब से गरीब इंसान अपनी आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा तवानाई पर खर्च करता है। अगर इंडिया इन लोगों के रोज़गार और मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है तो इसे अपनी तवानाई की फराहमी को महफूज बनाना होगा। इस मकसद के लिए सनत और ट्रांसपोर्ट दोनों शोबों में बरकी तब्दीली इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती है। 2030 तक दिल्ली की 1/3 गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से रिप्लेस करना एक बड़ा हदफ है। माहिरीन का कहना है कि ये पॉलिसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दे सकती है। ताहम इसकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हुकूमत चार्जिंग और दीगर बुनियादी सहूलियात को कितनी तेज़ी से बेहतर करती है। सामीन, अगर हुकूमत हर शहरी को हर माह एक मुकर्ररा रकम बिला शर्त अदा करे तो इसके माशरे और मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। मसनूई ज़हानत के बाइस जब इंसानी काम तेज़ी से खुदकार होते जा रहे हैं तो माहिरीन इस मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI की तजवीज़ पेश कर रहे हैं। ताहम नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआशियात ने खबरदार किया कि अगरचे ये तसव्वुर आमदन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बन सकता है, लेकिन इसके नतीजे में मुआशरे में एक नई और गहरी तकसीम भी पैदा हो सकती है। देखिए क्रिस सेप्थाप की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रहे हैं जावेद सोमरो। अगर हम एक ऐसा मुआशरा तश्कील देते हैं जहां 80, 90 या 95% अफरादी कुव्वत यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर जिंदा हो, तो हम दर हकीकत वो सबसे गहरी तकसीम पैदा कर चुके होंगे जिसका इंसानियत तसव्वुर कर सकती है। ये इंतबाह नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआशियात डेरोन एसीमोग्लू की जानिब से आया है। वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI की बात कर रहे हैं। इस निज़ाम में हुकूमत हर शख्स को एक मुकर्ररा रकम अदा करती है। ये कोई नया तस्वुर नहीं। इसका जिक्र टॉमस मोर ने अपनी किताब यूटोपिया में किया था, जो 16वीं सदी में शाया हुई थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये नज़रिया मसनूई ज़हानत के आलमी रोज़गार के बाज़ार पर पड़ने वाले असरात को महदूद करने में मदद दे सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनियों के सरबराह एलोन मस्क कहते हैं कि AI और रोबोट्स काम को इख्तियारी बना देंगे, और सैम ऑल्टमन, उनका भी ख्याल है कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आने वाली हैं। मैं इस बात से इत्फाक करता हूँ कि जब हम इंतहाई ताकतवर AI निज़ामों तक पहुँचेंगे तो मंजरनामा बदल जाएगा। लेकिन मैं ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि क्योंकि इंसान बेहद तख्लीकी हैं
और हम हमेशा कुछ नया करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग और बरतानिया के मारूफ कारोबारी शख्सियत रिचर्ड ब्रेंसन भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के हामी रहे हैं। इस तस्वर का अमली तजुर्बा भी किया जा चुका है। जर्मनी में एक तजुर्बे के तहत लोगों को 3 बरस तक हर माह तकरीबन $1300 अदा किए गए। ज़्यादातर अफराद ने तकरीबन पहले जितना ही काम जारी रखा। ताहम जर्मन पार्लिमान का कहना था कि ये निज़ाम बहुत महंगा साबित होगा और उससे मज़ीद इमिग्रेशन की हौसला अफजाई हो सकती है। फिनलैंड में भी इसका तजुर्बा किया गया, जबकि केनिया में एक और तजुर्बा जारी है और बाज़ लोगों के नज़दीक ऐसे मसाइल भी हैं जिन्हें UBI हल नहीं कर सकती। सोशल स्टेटस, समाजी हैसियत, वक़ार और ऐसी तमाम चीज़ें इन चंद लोगों के हाथों में चली जाएंगी जो टेक्नोलॉजी पर काबज़ होंगे और उस वक्त भी मुफीद काम कर रहे होंगे, जबकि बाकी लोग अमलन दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। really become second class citizens. तो अगर UBI नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है? We need much better social हमें कहीं बेहतर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम की ज़रूरत है। हमें ऐसे अफराद के लिए उजरती तहफ़्फ़ुज़ दरकार है जो अपनी मुलाजमत खो देते हैं और नई मुलाजमत की तलाश में होते हैं। हमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दीगर शोबों, ख़ुसूसन सेहत और तालीम को भी मजबूत बनाना होगा। लेकिन सिर्फ बड़े पैमाने पर दौलत की तकसीम के ज़रिए खुशहाल, जमहूरी और मसावी माशरा कायम नहीं किया जा सकता। हमें रोज़गार की ज़रूरत है। on the back of large scale redistribution. We really need jobs. वो भी चाहते हैं कि हुकूमतें कवायद और ज़वाबित में तब्दीली लाएं। We need to get हमें इन तमाम बिगाड़ पैदा करने वाले अवामल का खात्मा करना होगा जो सरमाया और खुदकारी को सब्सिडी देते हैं जबकि मेहनत पर टैक्स आयद करते हैं, और हुकूमत को ऐसे लोगों की हमायत करनी चाहिए जो नई और कारकुन दोस्त टेक्नोलॉजीज़ पर तजर्बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे AI मज़ीद काम इंसानों से छीनती जा रही है, शवाहिद यही इशारा देते हैं कि सिर्फ यूनिवर्सल बेसिक इनकम का तस्वर, ख्वाह कितना ही जुर्रतमंदाना क्यों न हो, AI के सबब पैदा होने वाले रोज़गार के मसले का मुकम्मल हल फराहम नहीं कर सकता। मिशिगन यूनिवर्सिटी की साइंसदान जैमो बोर्जेगर ने अपनी तहकीक इस सवाल के लिए वक्फ कर रखी है कि मौत के करीब पहुंचते वक्त इंसानी दिमाग में क्या होता है। उनकी तहकीक में इस हवाले से दिमागी सरगर्मी के ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिन्होंने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया है। आखिर मौत के लम्हों में हमारे दिमाग में क्या कुछ होता है और ये नई दरियाफ्त हमें इंसानी शऊर के बारे में क्या बताती है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मौत ही जिंदगी की वाहिद हकीकत है, लेकिन फिर भी ये राजों और सवालात में घिरी हुई है। उनमें से एक सवाल ये है कि मौत के बाद हमारे दिमाग के साथ क्या होता है। चंद साल पहले तक इस पर ज़्यादा साइंसी तहकीक मौजूद नहीं थी, मगर अब हालात बदल रहे हैं और हालिया दरियाफ्तें पुराने तसव्वुरात को रद्द कर रही हैं और मौत को करीब से देखने के तजुर्बात को बेहतर तौर पर समझने का मौका मिल रहा है। न्यूरोसाइंटिस्ट जीमो बोजेगान की तहकीक से ये शोबा नई रफ्तार पकड़ चुका है। उन्होंने बताया कि जब वो लेबॉर्ट्री के चूहों पर तजर्बात कर रही थीं तो बस इत्तफाकन ही इस मौजू में दिलचस्पी लेने लगीं। उनकी तहकीक के दौरान 2 जानवर मर गए और उन्होंने देखा कि मौत के वक्त एक चूहे में सेरोटोनिन, जो खुशहाली और तंदुरुस्ती से जुड़ा न्यूरोट्रांसमीटर है, बड़ी मिकदार में खारिज हुआ। ये बात प्रोफेसर जीमो की दिलचस्पी का बायस बनी, जिसके बाद उन्होंने तफसील से इस अमल का तज्जिया करने का फैसला किया। 2013 में उन्होंने उन चूहों पर नई दरियाफ्तें शाया कीं जो दिल के दौरे का शिकार हुए थे। ऐसी सूरत हाल में जबकि दिल का धड़कना बंद कर देता है, खून की गर्दिश मुतासर होती है और जिस्म के तमाम खुलियात को ज़रूरी ग़ज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती हैं। इस फराहमी के बग़ैर खुलियात मरने लगते हैं, टिश्यूज़ और अज़ा काम करना छोड़ देते हैं और आखिरकार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। लेकिन दिल के रुकने और ऑक्सीजन की कमी से दिमाग के न्यूरॉन्स के मरने के दरमियान के वक्फे में क्या होता है। प्रोफेसर जीमो की तहकीक से साबित हुआ कि कई न्यूरोट्रांसमीटर्स जो दिमागी राब्ते के जिम्मेदार हैं इस दौरान शदीद एक्टिविटी दिखाते हैं। लेबॉर्ट्री के चूहों में मिसाल के तौर पर सेरोटोनिन की मिकदार 60 गुना बढ़ गई। डोपामीन, जो एक और न्यूरोट्रांसमीटर है, 40 से 60 गुना तक बढ़ गया। न्यूरोसाइंटिस्ट के मुताबिक इतनी मिकदार कभी नहीं देखी जाती, यहाँ तक कि जब जानवर जिंदा और सेहतमंद होता है तब भी। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह मुतालिया शाया किया कि इंसानों के दिमाग में मौत के वक्त क्या होता है। इस मकसद के लिए उन्होंने 4 अफराद का मुशाहिदा किया जो कोमा में थे और सांस लेने के लिए
मैकेनिकल वेंटिलेशन पर थे। बदकिस्मती से ये मरीज मौत के करीब थे और डॉक्टर और घर वाले ये नतीजा अखज़ कर चुके थे कि उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। फैमिली की इजाज़त से मैकेनिकल वेंटिलेशन की ट्यूब्स हटा दी गईं। और एक अहम बात, इन सब के सरों पर इलेक्ट्रोड्स लगे थे ताकि मौत के इस अमल के दौरान होने वाली दिमागी सरगर्मी का जायजा लिया जा सके। और फिर टेस्ट के नताइज ने माहिरीन को भी हैरान कर दिया। अब तक ये समझा जाता था कि ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया की हालत में दिमाग अपनी सरगर्मी को कम करते हुए बिलाखिर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, लेकिन 2 मरीज जिनके बचने की उम्मीद नहीं थी, उनके दिमाग में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल इसके बरक्स था। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या EEG के जरिए जो दिमागी सरगर्मी को रिकॉर्ड करता है, ये गैर मुतवक्के तब्दीली देखी गई। वेंटिलेटर्स बंद होने के चंद सेकंड बाद साइंसदानों ने गामा शुआओं की गैर मामूली सरगर्मी का पता लगाया, जो दिमाग की तेज़ तरीन शुआएं होती हैं और मालूमात और यादाश्तों की प्रोसेसिंग में शामिल होती हैं। चूहों के बरक्स जिनमें दिमागी सरगर्मी फैली हुई थी, इंसानों में सर के मखसूस हिस्सों में ज़्यादा सरगर्मी देखी गई। इन हिस्सों में से एक जो ज़्यादा मुतहरिक हुआ टेम्पोरो पेरिएटो ऑसिपिटल जंक्शन TPO के नाम से जाना जाता है। यहाँ असाबी निज़ाम के 3 अहम हिस्से मिलते हैं। प्रोफेसर जीमो के मुताबिक ये हिस्सा हमारे हवास, शऊर, ख्वाबों और फरेब नज़र से जुड़ा होता है। कुछ तहकीकात इस हिस्से को हमदर्दी या दूसरों के एहसासात को समझने की सलाहियत से भी जोड़ती हैं। तहकीकात में एक और नुमाया हिस्सा वर्निकेस एरिया था। ये जगह कानों के करीब वाक़ है और बज़ाहिर ये बोलने, सुनने और यादाश्त के लिए अहम है, लेकिन यहाँ कुछ बातें जहन में रखना ज़रूरी हैं। पहली, ये एक इब्तदाई तहकीक है जिसका हिस्सा सिर्फ 4 अफराद थे। ये इब्तदाई नताइज साइंसदानों को मज़ीद तफसीली तहकीक करने में मदद देंगे ताकि इस मौजू को बेहतर तौर पर समझा जा सके। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि मरने के वक्त हर किसी के दिमाग में ये सरगर्मी नहीं बढ़ती। इस तहकीक में ये इजाफा सिर्फ 4 में से 2 अफराद में देखा गया, लेकिन ये दरियाफ्त मौत को करीब से देखने या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के तजर्बात के दिलचस्प फिनोमेना से जुड़ती है। आपने शायद ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचा लिया गया। उनमें से कुछ कहते हैं कि जब उनका दिल रुक गया था तब उन्होंने मुख्तलिफ एहसासात का तजर्बा किया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने तिब्बी अमले की आवाज़ें सुनी, जबकि दूसरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने जिस्म से बाहर आ गए हों और ऊपर से मंजर देख रहे हों। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी टनल के इख्तिताम पर एक रोशनी नजर आई हो, जैसे वो अपनी जिंदगी के अहम लम्हात को दोबारा देख रहे हों। बैनुल अक़वामी सर्विस के मुताबिक तकरीबन 20% अफराद ने ऐसी कैफियत महसूस की जिन्होंने मौत को करीब से देखा हो। लेकिन क्या मिशिगन यूनिवर्सिटी की तहकीक में नजर आने वाली गैर मामूली दिमागी एक्टिविटी इसका सबब हो सकती है? प्रोफेसर जीमो समझती हैं कि जी, उनके मुताबिक ये जिस्म से बाहर के तजुर्बात दर हकीकत दिमाग के अंदर ही होते हैं। वो इस तहकीक में शामिल 2 मरीजों के दिमाग में होने वाली सरगर्मी की तरफ इशारा करती हैं। वो हिस्से जो बसारत और यादाश्त से जुड़े हैं बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे, जो शायद मौत को करीब से देखने वाली कैफियत की वजाहत करते हैं। लेकिन ये यकीनी तौर पर कहना मुमकिन नहीं कि इन दोनों अफराद ने वाकई ये तजर्बा किया था, क्योंकि बदकिस्मती से वो अपनी आखिरी लम्हात की कैफियत बयान किए बगैर ही वफात पा गए। मौत पर तहकीक आगे बढ़ रही है, लेकिन इस दौरान प्रोफेसर जीमो का ख्याल है कि दिमाग की ये गैर मामूली सरगर्मी ऑक्सीजन की कमी के खिलाफ एक किस्म का मुकाबला करने का तरीकाकार हो सकता है। ये कुछ वैसा ही हो सकता है जैसे कुछ जानवर सर्दियों में खुराक की कमी से बचने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जहां वो गैर ज़रूरी सरगर्मी को कम करके सिर्फ जिंदा रहने पर तवज्जो मरकूज करते हैं। चूहे और इंसान दोनों मौत के करीब ऑक्सीजन की कमी से बचने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा है जैसे उनका दिमाग गैर ज़रूरी काम बंद करके सिर्फ वही सरगर्मी जारी रखता है जो बका के लिए सबसे अहम है। प्रोफेसर जीमो की तहकीक में दिखाई गई दिमागी सरगर्मी सर्वाइवल में कैसे मददगार साबित होती है ये अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन इससे एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या मरते हुए दिमाग को दोबारा जिंदा करना मुमकिन हो सकता है? ये साइंस फिक्शन या फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी जैसा लगता है, लेकिन कुछ साइंसदान इस इम्कान पर गौर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर येल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने ऐसे मुर्दा सूरों में खून की गर्दिश और कुछ दिमागी खुलियात की सरगर्मी बहाल करने में कामयाबी हासिल की जो 4 घंटे पहले मर चुके थे। बदकिस्मती से वो दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहाल ना कर सके जो शऊर और इदराक से मुंसलिक है। तहकीक के मुताबिक अगरचे ये कामयाबी अभी इब्तदाई और महदूद है, लेकिन ये इस नज़रिए को चैलेंज करती है कि दिमागी मौत मुकम्मल तौर पर नाकाबिले वापसी होती है।
آج ZBC ریڈز میں ذکر ایک غیر معمولی کمیونٹی کا جو وکٹورین دور میں قائم ہوئی اور جس میں شامل ہونے والوں کے لیے بظاہر واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا تھا۔ اس گروہ پر جنسی استحصال اور سخت سماجی کنٹرول کے الزامات لگے، جبکہ اس کے بعض اراکین بعد میں اس قدر شدید مشکلات کا شکار ہوئے کہ انہوں نے اپنی جان تک لے لی۔ آخر اس کمیونٹی میں ایسا کیا تھا جو لوگوں کو اس کے حصار میں جکڑے رکھتا؟ چارلی ٹیلر اور جوناتھن ہولمز کی تحریر پیش کر رہی ہیں سمرا فاطمہ۔ آج BBC ریڈز میں بات وکٹورین دور کی ایک ایسی غیر معمولی کمیونٹی کی جس میں شامل ہو جانے والوں کے لیے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ اس سیکس کلٹ میں شامل ہونے والے کچھ لوگ بعد میں اپنی جان تک لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس کلٹ کے ارکان کے ساتھ کیا ہوا، اس بارے میں آج بھی بین الاقوامی سطح پر دلچسپی پائی جاتی ہے۔ وکٹورین دور میں بننے والا اگاپیمونائٹس نامی گروہ اسپاکسٹن میں واقع ایک گرجا گھر یعنی چیپل میں قائم تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جسے اب ایک Airbnb کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس گروہ میں شامل ہونے والوں سے کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور اسی صورتحال نے اس گروہ سے منسلک بہت سے افراد کو بالآخر اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے پر مجبور کیا۔ اگاپیمونائٹس نامی اس گروہ کے رہنما ہنری جیمز روح القدوس یعنی ہولی اسپرٹ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی جمع پونجی اور دولت ان کے حوالے کر دیں، اور پیروکاروں کو ایسی جنسی نوعیت کی رسومات میں شرکت پر آمادہ کیا جو ناول دی ہینڈ میڈ ٹیل کے مناظر سے مشابہ تھی۔ ان رسومات کے دوران ہنری جیمز کی اہلیہ انہیں یعنی اپنے شوہر کو دوسری خواتین کو حاملہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ BBC کے سابق صحافی اور کتاب A Very British Cult کے مصنف اسٹوارٹ فلنڈرز نے کہا کہ ان دیواروں یعنی وہ چرچ جس کے اندر یہ گروہ قائم تھا، اس کے پیچھے جو کچھ ہوتا تھا اس کے بارے میں نہ صرف مقامی افراد کو تجسس تھا بلکہ یہ بین الاقوامی دلچسپی کا بھی موضوع بن گیا تھا۔ اس گروہ کے سربراہ ہنری جیمز پرنس اسپاکسٹن کے قریب ہی واقع ایک گاؤں میں بطور پادری تعینات ہوئے تھے، اور یہ ان کی پہلی باقاعدہ ملازمت تھی۔ فلنڈرز بتاتے ہیں کہ ہنری جیمز بطور پادری اس گاؤں میں زیادہ مقبول نہیں ہوئے، کیونکہ وہ عبادت گزاروں سے کہا کرتے تھے کہ وہ نجات حاصل کرنے میں ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے چل کر وہ یعنی ہنری جیمز اس بات پر یقین کرنے لگے تھے کہ وہ روح القدوس کا جسمانی مظہر ہیں، دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو وہ خدا ہیں۔ وہ روح القدوس سے اس نوعیت کی گفتگو کرتے تھے: کیا آج بارش ہوگی؟ کیا مجھے چھتری ساتھ لے جانی چاہیے؟ مختلف علاقوں میں تبادلے اور چرچ آف انگلینڈ سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے اسپاکسٹن میں زمین خریدی اور اپنے پیروکاروں کے لیے ایک بڑا چیپل اور رہائش گاہ تعمیر کی۔ اس فرقے کی رکنیت کے قواعد کافی سخت تھے اور اس میں شامل ہونے والے لوگوں کو گروہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس صورتحال کے باعث اس گروہ کے کئی ارکان نے اپنی جان لے لی، اور اس زمانے میں ہونے والی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہنری جیمز پرنس اپنے پیروکاروں پر کس حد تک کنٹرول رکھتے تھے۔ فلنڈرز کہتے ہیں کہ ان کے پیروکاروں میں نوٹس سسٹرز نام سے مشہور 3 بہنیں بھی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک بہن کو وراثت میں 6000 پاؤنڈ ملے تھے، جو آج کی مالیت کے مطابق تقریباً 5 لاکھ پاؤنڈ بنتے ہیں۔ ہنری جیمز نے انہیں بتایا کہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ ان کے ایک پیروکار سے شادی کرے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چونکہ یہ 19ویں صدی کا دور تھا، اس لیے خواتین کو وراثت میں ملنے والی اپنی رقم اپنے نئے شوہر کے حوالے کرنا پڑتی تھی، جنہوں نے وہ رقم براہ راست اگاپیمونائٹس کے خزانے میں جمع کروا دی۔ فلنڈرز کے مطابق ہنری جیمز پرنس نے اپنے پیروکاروں کے سامنے کی جانے والی جنسی رسومات کا جواز پیش یہ کیا کہ وہ روح القدوس کی جسمانی صورت ہیں، اور یہ ایک مذہبی رسم کا حصہ ہے جس میں روح القدوس انسانی روپ اختیار کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تقریب سے متعلق جو بات یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک ایسی تقریب منعقد کی جاتی تھی جس میں ہنری پرنس کی اہلیہ سمیت سبھی لوگ شرکت کرتے تھے۔ سن 1899 میں ہنری جیمز پرنس کی وفات کے بعد سومرسیٹ سے تعلق رکھنے والے جان ہیو اسمتھ پگوٹ نے ان کی جگہ لے لی۔ فلنڈرز کا کہنا ہے کہ سن 1902 میں لندن کی ایک چرچ میں مذہبی اجتماع کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دوبارہ آنے والے یسوع مسیح ہیں۔ لوگوں نے ان کے اس دعوے کو گستاخی سمجھا اور مشتعل ہو گئے، اور چرچ کے اطراف کی سڑکوں پر ہنگامے پھوٹ پڑے، جس کے بعد انہیں واپس سومرسیٹ جانا پڑا۔ سن 1927 میں پگوٹ کی موت کے بعد یہ افواہ پھیلی کہ ان کے پیروکاروں نے انہیں کھڑی حالت میں دفن کیا ہے تاکہ وہ آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے تیار رہیں۔ ان کی موت کے بعد یہ فرقہ بتدریج کمزور پڑتا گیا، اور بعد ازاں وہ جگہ جہاں یہ فرقہ قائم تھا بزرگ افراد کی نگہداشت اور دیکھ بھال کا مرکز بن گیا۔
सन 1960 की दिहाई में इस जगह को फरोख्त कर दिया गया और फिर इस जगह को टीवी स्टूडियो में तब्दील कर दिया गया। अब आजकल इसे छुट्टियां गुजारने के लिए एयरबीएनबी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास गोला बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जबकि इसके बरक्स इतलात फैलाने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई और तवील कैद की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर में कमी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमरीका के पास खसूसन बाज़ अहम इक़साम का वाफर मिकदार में गोला बारूद मौजूद है। ताहम उन्होंने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। सदर ट्रंप ने मज़ीद दावा किया कि न सिर्फ मौजूदा ज़खायर काफ़ी हैं, बल्कि बड़ी मिकदार में नया गोला बारूद भी तैयार किया जा रहा है, जो ज़रूरत के मुताबिक अमरीकी फ़ौज को फराहम किया जाएगा। उनके बकौल दिफाई सनत इस वक्त मुल्क की तारीख में अपनी तेज़ तरीन तोसी के मरहले से गुजर रही है और मुतअद्दिद नई फैक्ट्रियाँ और पैदावारी तनसीबात कायम की जा रही हैं। इससे कबल वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि गुज़िश्ता जुमे को कैंप डेविड में होने वाले काबीना इजलास के दौरान सदर ट्रंप ने वज़ीर दिफा पीट हेगसेट से गोला बारूद की मुमकिना कमी के बारे में वजाहत तलब की थी। अखबार ने दो बाखबर मगर नामालूम ज़राए के हवाले से दावा किया कि ट्रंप का ख्याल था कि यह मसला पहले ही हल हो चुका है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके मुल्क ने रूस में वाक़ 2 ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। इससे कबल ऐसी इतलात थी कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद यारोस्लावल ऑयल रिफाइनरी की सिमत से स्याह धुआं उठता हुआ देखा गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 अगस्त यानी आज से 8 अगस्त तक सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म समेत सियासी और फौजी हुकाम भी होंगे। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने इस सरकारी दौरे पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात के अलावा खित्ते में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक खलीज में जारी कशीदगी की वजह से इस दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है।